Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Chaube from Government Girls College, Batul. Students, I am so glad to find once again this pleasant opportunity to be with you and to deal with this interesting topic, tenses. Students, I think you have heard somewhere or have read somewhere that Einstein says that it's the supreme art of a teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. Students, I think to awaken joy in students while teaching literature is an easy task, but to awaken joy in students while teaching grammar is a challenging task. I think you have also heard a saying that to be simple is the most difficult task. So, besides the other objectives of my class, today I have taken these two challenges to be the objective of my class. First, to bring to you the rules of tenses in a simple way and to make my class an interesting one. In this class, I would be dealing with the construction of sentences in various tenses and the situations where we can use these tenses. Students, whenever we start learning any concept or an idea, the first question that arises in our mind is related to the origin of the word, from where the word or the concept has come. So the natural question that arises here is, from where the word tense has come. So students, the word tense comes from the Latin word tempus, meaning time. The next question that arises in our mind is related to the meaning of the term. What's the meaning of the term tense? Tense is the form of a verb which shows the time and the state of an action or event. You know, the tenses are of three types. First is the present tense, second one the past tense, and the future tense. And you also know that each tense is divided into further four forms. For example, the present tense has the present indefinite tense, the present continuous tense, the present perfect tense, and the present perfect continuous tense. Similarly, the past tense also has four forms: the past indefinite or past simple tense, past continuous or past progressive tense, past perfect tense, and the past perfect continuous tense. In the same way, the future tense also has four forms, as you know: the future indefinite, future continuous, future perfect, and the future perfect continuous tense. Now, I think we should deal with various helping verbs that are used in various tenses. We should start with present simple. In present simple tense, as you find here on your screen, the first form of the verb is used, or is or es is added to the verb. In making the sentences negative or interrogative, we use do or does. In the past simple tense, second form of verb is used, and if the sentences are made into negative, did is used. In future indefinite tense, first form of verb is used and will or shall is used. Now we have some sentences in the present indefinite tense. For example, the first one is, he sings a song. Next one, they sing a song, you sing a song, I sing a song, and we sing a song. Students, you find here that in the first sentence, s is added to the verb sing. So what's the rule behind it? Why have we used s with sing in the first sentence while we have not added s to the verbs of other sentences? So the rule is, if the subject is third person singular, s or es is added to the verb. And if the subject is any other or belongs to any other person than third person singular, the s or es will not be added to the verb. So we have not added s or es to the verbs in the second, third, fourth, fifth sentences. And if we have to make these sentences negative, do not or does not will be used. Does not will be used in
third person singular with third person singular subjects and do not with other subjects. Now few examples of past indefinite tense. You find here he sang a song yesterday, they sang a song yesterday, you sang a song yesterday, I sang a song yesterday, and we sang a song yesterday. So second form of verb is used in past indefinite tense. You know, sang is the second form of verb sing. With all the subjects, whether the subject belong to first person, second person or third person, second form of verb is used. And if these sentences are to be changed into negative, helping verb did or did not will be used. So these sentences in negative will be he did not sing a song, they did not sing a song, you didn't sing a song, I did not sing a song, and we did not sing a song. So you find here that in past indefinite tense, second form of verb is used, and in negative sentences of the past indefinite tense, did not is used. Now we come to the future indefinite tense. In future indefinite tense, as you find here, helping verb will or shall is used. Shall is used if the subject is first person, and will is used if the subject belongs to second person or third person. That's why here in the first sentence, the subject belongs to third person singular and will is used here. He will sing a song. And in the second sentence, the subject belongs to third person plural. So will is used here. They will sing a song. You will sing a song. Here the subject belongs to second person. And where the subject belongs to first person, for example, in fourth and fifth sentence, shall is used. So in future indefinite tense, helping verb that is used is shall or will. Shall is used with first person subject and will with second person and third person subject. And if we have to make these sentences negative, only not will be added to these sentences. And the sentences will be, they will not sing a song. He will not sing a song. You will not sing a song tomorrow. I shall not sing a song tomorrow. And we shall not sing a song tomorrow. Now, what are the situations where we use present indefinite tense, past indefinite tense, and future indefinite tense? So the present indefinite tense is used first to express habitual actions and actions repeated at regular intervals. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो आदतन किए जाते हैं या फिर ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि नियमित अंतराल पर बार-बार किए जाते हों जिनकी पुनरावृत्ति होती हो. And it's often used with adverbs such as always, usually, generally, regularly, daily. For example, he gets up early in the morning. They go for a morning walk daily. You play cricket regularly. I read the Gita daily. यहाँ आप देख रहे हैं उन कार्यों का उल्लेख है जो कि या तो हमारी आदत में शुमार हैं या फिर जो कार्य नियमित अंतराल पर बार-बार किए जाते हैं. इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है. और आप देख रहे हैं he gets up. यहाँ पर get में s जोड़कर वर्ब में s जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं दे, यू, आई, उनके साथ में जो वर्ब प्रयुक्त हुए हैं उसमें s या es नहीं जोड़ा गया है क्योंकि सिंपल रूल क्या है, s और es is added to the verb if the subject belongs to third person singular. और हम देखते हैं परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं जहां के प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है. देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, द गैंजेस राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज. गंगा हिमालय से निकलती है. यहाँ आप देख रहे हैं कि राइजेस जो वर्ब है उसमें एस जोड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि द गैंजेस दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है और ये एक सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त कर रहा है.
ट्रीज कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यहाँ भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर ट्रुथ है। यहाँ आप देखें ट्रीज कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्रोल में एस का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट जो ट्रीज है वो भले ही थर्ड पर्सन है परंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब कंट्रोल में एस का प्रयोग नहीं किया हुआ, एस को नहीं जोड़ा गया है। फिर आप देखें द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ भी यूनिवर्सल फैक्ट व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। द सन आप देख रहे हैं दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई एस इज एडेड टू द वर्ब राइज, और राइज में एस जोड़कर राइजेस बना दिया गया है। अब हम देखें और परिस्थितियां जहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। This is used for the historical present to bring past events more vividly before the hearer or the reader. इसे ऐतिहासिक वर्तमान भी कहते हैं। इसमें भूतकाल की घटनाओं को श्रोता या फिर पाठक के सामने और अधिक सजीव रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, as soon as Ram puts his foot on the rock, it turns into a beautiful woman. जैसे ही राम अपने चरण शिला पर रखते हैं वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ आप देखें कि जिस घटना का वर्णन है वो तो भूतकाल से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि वक्त श्रोता या फिर पाठक के सामने इस घटना को सजीव रूप में लाने का प्रयास किया गया है। जब किसी भूतकाल की घटना को हम सजीव रूप से सामने लाने का प्रयास करते हैं तो फिर उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। और हम कैसे पहचान रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर राम पुट्स हिज फूट, पुट में एस लगाकर यहाँ पर वर्ब को इस तरह बनाया गया है। आगे देखें इट टर्न्स, यहाँ पर टर्न में एस जोड़ा गया है जो कि यह शो कर रहा है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक उदाहरण है। और देखें as soon as Sita takes the ring in her hand, she at once recognizes it. जैसे ही सीता अपने हाथ में मुद्रिका लेती हैं, वह उसे तुरंत पहचान लेती हैं। ये भी एक भूतकाल की घटना है जिसको सजीव रूप से पाठक के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखें सीता जो एक सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस का प्रयोग किया गया है। और देखें टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, उदाहरण को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोक्रेटिस सेज, यहाँ पर से में एस जोड़ा गया है क्योंकि सोक्रेटिस सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये उदाहरण क्या है? He is the wisest person of the world who knows that his wisdom is nothing. सुकरात कहते हैं कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ये जानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता तो कुछ भी नहीं है। तो इस कोटेशन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग आपने यहाँ पर देखा। और देखते हैं हम एक और उदाहरण लेते हैं। द महर्षि सेज, ओ गॉडेस सरस्वती, how wonderful your treasure is. It increases if spent and decreases if stored. ओ माँ सरस्वती, तुम्हारा खजाना कितना अद्भुत है। यह व्यय करने से बढ़ता है और संचय करने से कम हो जाता है। आपने विद्या महिमा में यह श्लोक पढ़ा होगा कि अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। माँ सरस्वती, तुम्हारा ज्ञान का खजाना कितना अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप उसे सिखाने लग जाइए, क्योंकि अगर आप उसे सिखाएंगे तो सिखाने से भी व्यक्ति सीखता है। इसीलिए बच्चों, जिस समय आप फ्री होते हैं और जो विषय आपको अच्छे से आता है आप उसे अपने साथ के दोस्तों को, मित्रों को सिखा सकते हैं, क्योंकि उससे आप सामने वाले का ही एक फायदा नहीं कर रहे, अपना स्वयं का भी फायदा करते हैं। तो ये इस कोटेशन के बारे में हुआ और हमने जाना कि किसी कोटेशन को, किसी उदाहरण को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब ये एक और
परिस्थिति है जहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट और एक्शन दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम, प्लान एंड अरेंजमेंट। भविष्य की किसी ऐसी घटना या फिर कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि एक निश्चित प्रोग्राम, प्लान या फिर अरेंजमेंट का हिस्सा है। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, द कॉलेज रीओपन्स ऑन 1st of July। यह एक फिक्स प्रोग्राम का हिस्सा है कि मैच सुबह 9 बजे शुरू होने वाला है और कॉलेज 1 जुलाई को खुलता है। तो किसी फिक्स प्रोग्राम के हिस्से को व्यक्त करने के लिए, जो कि वो फिक्स प्रोग्राम या फिर जो इवेंट है, जो एक्शन है वो भविष्य में होने वाला है, उसको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल टेंस की ओर। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? To indicate some activity or event having taken place at a particular point or period of time in the past। किसी ऐसे कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में किसी निश्चित समय या अवधि पर संपन्न हुए हों। And usually used with an adverb or adverbial phrase। किसी adverb या adverbial phrase के साथ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि I went to विश्वनाथ टेम्पल last Monday। पिछले सोमवार मैं विश्वनाथ मंदिर गई थी। कार्य कब संपन्न हुआ है? भूतकाल में। तो भूतकाल में हुए किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है और आप यहाँ देख रहे हैं इसमें लास्ट मंडे का प्रयोग किया गया है। और देखते हैं आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द लास्ट एग्जामिनेशन। मैंने पिछले एग्जामिनेशन में कठिन परिश्रम किया। यहाँ आप एडवर्बियल फ्रेज देख रहे हैं, ड्यूरिंग द लास्ट एग्जामिनेशन। इसमें भी भूतकाल में किए गए कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ। और आप कैसे जान रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है? क्योंकि अभी आपने शुरू में देखा था कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब्ड जो है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि भूतकाल की एक घटना को या फिर कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट टाइम। भूतकाल में आदतन किए गए कार्यों को व्यक्त करने के लिए या फिर नियमित रूप से किए गए कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि he never told a lie in his life। उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। He went to the temple every day। वह रोज मंदिर जाता था। तो ये जो उदाहरण हैं ये व्यक्त करते हैं कि कार्य हैबिचुअल यानी कि आदतन किया जाता रहा है या फिर यह रेगुलर एक्शंस हैं, नियमित रूप से किए गए कार्य हैं। तो नियमित रूप से किए गए कार्यों को या फिर आदतन किए गए कार्यों को जो कि भूतकाल में किए गए हैं व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे कार्य या घटना को व्यक्त किया जाता है जो कि भविष्य में जिनके की संपन्न होने की संभावना है। जैसे कि आई शैल फिनिश माई वर्क टुमारो। मैं अपना कार्य कल संपन्न करूंगा। आई विल गो इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में। ही विल गो इन हाफ एन आवर। वह आधे घंटे में जाएगा। इसमें आप देखें जैसे कि हमने पहले नियम की बात की थी कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में होता है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ और विल जो है वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। ही जो है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में विल का प्रयोग हुआ। फिर हम देखेंगे और इसमें देखिए आप यहाँ पर यू शैल नॉट स्टील। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यू के साथ में शैल की जगह विल का प्रयोग हो गया। ऐसे क्यों हुआ है? तो बच्चों अगर वाक्यों के माध्यम से कमांड, थ्रेट, विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन यानी कि कमांड आदेश, थ्रेट धमकी, विलिंगनेस इच्छा, प्रॉमिस वचन या वादा, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ इच्छा शक्ति का हम बोध कराना चाहते हैं तो फिर शैल जहां प्रयोग होता था वहां विल का प्रयोग कर देंगे और जहां विल होता था उसकी जगह पर शैल का प्रयोग कर देंगे। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं
कि यू के साथ में विल की जगह शैल का प्रयोग, आई के साथ में शैल की जगह विल का प्रयोग हुआ है। यू शैल नॉट स्टील, यहाँ एक कमांड दिया जा रहा है। यू शैल बी punished फॉर दैट, यहाँ एक धमकी दी जा रही है। आई विल कम विद यू, यहाँ विलिंगनेस एक्सप्रेस हो रही है। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आई विल सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, इस प्रयास में मैं सफल हूँगा। मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि कमांड, थ्रेट, विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन इत्यादि व्यक्त करने के लिए जो शैल और विल का नियम है वो विपरीत हो जाता है, पलट जाता है। शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टेंसेस की। अब यहाँ देखें, what are the helping verbs that are used in continuous tenses? In the present continuous tense you find here is, am or are is used and ing is added to the verb. In past continuous tense, you find here was or were is used and ing is added to the verb. In future continuous tense, you find here that will be or shall be is used and ing is added to the verb. आप इसमें देखें कि कौन सी एक चीज है जो तीनों में आपको दिखाई पड़ रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी कंटीन्यूअस टेंसेस में वर्ब के साथ में ing लगी है। इसलिए टेंसेस को पहचानना एक बहुत आसान काम है। जब भी कोई टेंस कंटीन्यूअस है, चाहे आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, या फिर अब आगे आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी कंटीन्यूअस टेंसेस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, जिसको देखते ही कम से कम आप इतना तो समझ ही पाएंगे कि यह कंटीन्यूअस है, क्योंकि वर्ब में वहां पर ing का प्रयोग होगा। अब देखिए बहुत आसान है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, पास्ट में वही was were, फ्यूचर में will be और shall be का प्रयोग होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए, the present continuous tense, he is singing a song, they are singing a song, you are singing a song, I am singing a song and we are singing a song. यहाँ आप देखें is, am, are, these are the helping verbs that have been used here. So is used with singular subject and are with plural subject and am with I. आप लोगों को सभी को इतना आता ही है कि is का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, are का प्लूरल और am का प्रयोग I के साथ में होता है। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? He is not singing a song, they are not singing a song, you are not singing a song, I am not singing a song and we are not singing a song. अब हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। He was singing a song, they were singing a song. यहाँ पर what are the helping verbs that have been used here? Was or were is the helping verb that is used in past continuous tense. Was is used with singular subject and were is used with plural subject. That's why with he, was is used, with they, were is used. So he was singing a song. और अगर इनको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? और किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ नॉट का प्रयोग हो जाएगा। He was not singing a song, they were not singing a song, you were not singing a song, I was not singing a song yesterday and we were not singing a song yesterday. So ये देखा आपने कि बहुत आसान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ आपने देखा था कि इस एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was या were का प्रयोग हुआ है। was का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड were का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया गया है। अब हम और आगे देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। He will be singing a song tomorrow. यहाँ आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिल रहे हैं? Will be और shall be is used in the future continuous tense. Shall be is used if the subject belongs to फर्स्ट पर्सन मतलब I या फिर we, और सेकंड पर्सन मतलब you, और थर्ड पर्सन का मतलब he, she, it, they, etc. तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में will be का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन के साथ shall be का प्रयोग। तो इस तरह आपने यहाँ पर उदाहरण देखे। इनको अगर निगेटिव में चेंज करना हो तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ नॉट लगाएंगे। He will not be singing a song tomorrow, they will not be singing a song tomorrow,
You will not be singing a song tomorrow. I shall not be singing a song tomorrow. And we shall not be singing a song tomorrow. अब हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की जहां ये सभी continuous tenses प्रयोग किए जाते हैं. The present continuous tense is used for an action that is in progress at the time of speaking. बात करते समय जो कार्य जारी है, वर्तमान में जो कार्य जारी है, उसी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है. जैसे कि आई एम स्पीकिंग, यू आर सिटिंग इन द वर्चुअल क्लासरूम, यू आर लिसनिंग टू मी. इसमें आपने देखा मैं बोल रही हूँ, आप वर्चुअल क्लास में बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं. यहाँ पर तीनों ही वाक्यों में उस कार्य का वर्णन है जो कि वर्तमान में जारी है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उन कार्यों का उल्लेख होता है जो कि वर्तमान में जारी रहते हैं. For a temporary action which may not be happening at the time of speaking. अभी हमने बात की ऐसे कार्य की जो कि वर्तमान में जारी हो, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उस एक अस्थायी कार्य की जो बात करते समय न भी जारी हो. उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. कैसे कि जैसे आप देखिए यहाँ पर आई एम रीडिंग द रामचरितमानस दीज डेज. मैं इन दिनों रामचरितमानस पढ़ रही हूँ. इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है. आप यहाँ देखें कि ये कार्य जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय चल नहीं रहा, मतलब इस समय में रामचरितमानस नहीं भी पढ़ रही, परंतु चूंकि इन दिनों में रामचरितमानस पढ़ रही हूँ इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है. माय फादर इज राइटिंग अ बुक. तुरंत इस समय मेरे पिता न भी लिख रहे हो किताब, लेकिन इन दिनों अगर वह एक किताब लिख रहे हैं तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है. और कौन सी परिस्थिति है जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है? फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और जनरल हैबिट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म. बार बार दोहराए गए एक कार्य को व्यक्त करने के लिए या फिर सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए जिससे कि असहमति या फिर आलोचना का भाव व्यक्त हो रहा हो. जैसे कि शी इज ऑल द टाइम बोस्टिंग ऑफ हर ओन नॉलेज. वो हर समय अपने ज्ञान की शेखी बघाड़ती रहती है. यहाँ आप देखें कि एक ऐसे कार्य का वर्णन है जो कि बार बार होता रहता है, ऑल द टाइम, बार बार वो ऐसे करती रहती, हर समय करती रहती. और दूसरी बात क्या है? एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म. इस वाक्य को पढ़ के लगता है कि जो वक्ता है वह उस लड़की के इस कार्य से सहमत नहीं है, एक्सप्रेस कर रहा है डिसअप्रूवल और या फिर क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना कर रहा है. तो फिर इसका हम अभिप्राय ये निकालते हैं कि बार बार दोहराए गए एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिससे कि जो वक्ता है वो असहमत है या फिर जिसकी वो आलोचना कर रहा है, उस परिस्थिति में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है. जैसे आप दूसरा उदाहरण लें, हिज फ्रेंड्स आर ऑलवेज मिसबिहेविंग. उसके फ्रेंड्स हमेशा दुर्व्यवहार करते रहते हैं. तो यहाँ भी आपने देखा एक ऐसे कार्य का वर्णन है जो कि बार बार रिपीट किया गया है और जो कि सामान्य आदत बन चुकी है और जिस कार्य से जो वक्ता है वो असहमत है और वह उसकी आलोचना करना चाहता है. For an action that has already been arranged to take place in the future, in the near future, आप देखें कि वर्तमान जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है जो कि भविष्य में होने वाला है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था, उसका निर्धारण पहले से हो चुका है. जैसे कि आई एम गोइंग टू एंगेज इन अदर क्लास टुमारो. मैं कल दूसरी क्लास लेने वाली हूँ. कार्य भविष्य में होने वाला है लेकिन हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये कार्य पूर्व निर्धारित है. माय मदर इज अराइविंग टुमारो. मेरी माँ कल आ रही हैं. कार्य भविष्य में होने वाला है परंतु चूंकि पूर्व निर्धारित है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है. अब हम बात करेंगे पास्ट पर प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. द पास्ट progressive tense refers to some activity in progress in the past. Past progressive tense में एक ऐसे कार्य का वर्णन होता है जो कि भूतकाल में जारी था. जैसे कि I was writing a novel last year. मैं पिछले साल एक नॉवेल लिख रही थी. प्रोग्रेसिव में इंपॉर्टेंट क्या है? कार्य जारी रहना चाहिए.
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर यही वाक्य होता तो कैसे होता? आई एम राइटिंग अ नॉवल। और ये पास्ट में आई वॉज राइटिंग अ नॉवल, अब पास्ट की बात है इसलिए लास्ट ईयर। यहाँ आप देखिए दूसरा सेंटेंस है द गर्ल वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, लड़की कल एक किताब पढ़ रही थी। और सेंटेंसेस हम देखें, एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट some point of time in the past when another action took place। भूतकाल में किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जब उसी समय दूसरा कार्य हो गया हो, जैसे कि द बस वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज व्हेन सडनली एन ओल्ड मैन केम इन फ्रंट ऑफ द बस। बस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी कि अचानक एक दूसरा वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आ गया। आई वॉज लर्निंग माई लेसन व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं अपना लेसन पढ़ रही थी तभी मेरी मित्र आई। तो एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में जारी था और जिसके साथ में दूसरा कार्य संपन्न हुआ। Two or more actions going on at the same time, एक साथ में दो अगर कार्य जारी हों उसे व्यक्त करने के लिए भी past continuous tense का प्रयोग होता है, जैसे कि while I was teaching in the classroom, two students sitting on the last bench were talking to each other। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो लास्ट बेंच पर बैठे दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। While Sarita was reading, Rajan was playing। आपने देखा यहाँ दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में साथ में जारी थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम देखें कौन सी परिस्थिति है जहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन और इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोग्रेस अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसे कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में एक निश्चित समय पर जारी रहेगा, जैसे आई शैल बी टीचिंग माय स्टूडेंट्स एट 7 इन द मॉर्निंग। सुबह 7 बजे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही होंगी। For actions in the future which are already planned or expected to take place in the normal course of time, भविष्य में होने वाले ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि पूर्व निर्धारित है या फिर समय के साथ संपन्न होंगे, जैसे कि he will be meeting us next Monday, a new batch of students will be arriving in July। अब हम बात करेंगे perfect tenses की, the present perfect tense, the past perfect tense and the future perfect tense। What are the helping verbs that are used in these tenses? You find here that has or have is used in the present perfect tense, had in past perfect tense, and will be or shall be is used in future perfect tense। What's the thing common that you find here in all these perfect tenses? The common thing is that the third form of verb is used। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he has sung a song, they have sung a song। What do you find here? Where should we use has and where should we use have? Has is used if the subject belongs to third person singular, and if the subject is third person plural or any other subject except third person singular, we use have। That's why have is used with they, you, I and we, and has is used with third person singular subject, that is he। And in past perfect tense, it's easier than the earlier one because here we use only had and third form of the verb is used। So you find here with all the subjects, whether they belong to any person, had is used। He had sung a song, they had sung a song, you had sung a song, I had sung a song, and we had sung a song। And now a few examples of future perfect tense. He will have sung a song, they will have sung a song। What's the helping verb that's used here? Will have or shall have is the helping verb that is used in future perfect tense. If the subject belongs to first person, shall have is used, and if the subject belongs to second person or third person, will have is used, and third form of verb is used in future perfect tense। Now what are the situations where we can use the present perfect tense? To indicate activities completed in immediate past with just। तत्कालिक भूतकाल में संपन्न किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि आई हैव जस्ट टेकन माय ब्रेकफास्ट, अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन विद करंट रेलेवेंस हुज रिजल्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता
प्रासंगिकता है या जिसका रिजल्ट अभी भी परिलक्षित हो रहा है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है, अभी अभी मेरा पर्स खो गया है। ही हैज फाउंड अ जॉब, उसको एक जॉब मिल गया है। और इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या प्रभाव परिलक्षित हो सकता है? बहुत से प्रभावों में से एक ये हो सकता है कि आई एम अनेबल टू बाय द बुक, मेरा पर्स खो गया है तो मैं किताब लेने में, खरीदने में अभी असमर्थ हूँ। उसको एक जॉब मिल गया है, तब उसको नौकरी के लिए, अपने करियर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, जिसका प्रभाव वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और कैसे पहचान में आएगा? यहाँ आप देख रहे हैं हैज या हैव का प्रयोग है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप यहाँ पर देख रहे हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हिच टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में संपन्न हुआ और जिसका समय नहीं दिया गया। जैसे कि आई हैव रेड द श्रीमद् भगवद गीता, मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। कब पढ़ी है उसका उल्लेख नहीं है। अगर हम ये कहें कि मैंने पिछले साल श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, तो फिर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस न होकर पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा और वाक्य बनेगा आई रेड द श्रीमद् भगवद गीता लास्ट ईयर। जहाँ भूतकाल के उस कार्य में जहाँ की समय का उल्लेख नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और भूतकाल के उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसमें समय का उल्लेख हो गया, वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। And a past perfect tense is used to describe an action completed before some other action in past. Past perfect tense का प्रयोग एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के पहले संपन्न हुआ हो। जैसे कि by the time the doctor arrived, the patient had gone. दो कार्य हुए हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा पेशेंट का चला जाना। तो जो कार्य पहले हुआ है उसमें हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और बाद वाले कार्य में हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाई, पेशेंट हैड गॉन, पेशेंट चला गया था। पहले काम कौन सा हुआ है? पेशेंट का चला जाना। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है। उसके बाद में कौन सा काम हुआ है? डॉक्टर का आना। वहां पर आप देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर अराइव्ड, ये पास्ट सिंपल है और पेशेंट हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ आपने देखा कि दो कार्य हैं, जो कार्य पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग और जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि किसी दूसरे कार्य के पहले संपन्न हुआ। दूसरा कार्य कौन सा है? डॉक्टर का आना। उसके पहले कौन सा काम हो गया है? पेशेंट चला गया। तो पेशेंट जो चला गया, जो कार्य पहले हुआ, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आपने यहाँ पर देखा। एक और उदाहरण लेते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। अभी हमने बात की एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि एक दूसरे कार्य के पहले संपन्न हुआ। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि एक निश्चित समय के पूर्व संपन्न हुआ। जैसे आई हैड रिटन माई आर्टिकल बाय 10 o'clock, मैंने 10 बजे के पहले अपना आर्टिकल लिख दिया था। अब समय कम है, जल्दी से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में एक निश्चित समय से पूर्व संपन्न होंगे। जैसे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आशुतोष विल हैव कंप्लीटेड हिज बीटेक। अगले साल के पहले या समाप्त होने तक आशुतोष अपनी बीटेक कंप्लीट कर चुका होगा। To express actions that are expected to be completed before some other action in future, भविष्य में किसी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य संपन्न हो चुके होंगे उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे कि you will have reached college before the bell rings. अब लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू फाइंड हियर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन, इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और शैल हैव बीन is used. And one thing that is common and you find here is that ing is added to the verb in all these tenses. Now you find here some examples. For example, he has been singing a song. You find here that has been as a helping verb is used here. Has been or have been is used here and ing is added to the verb. In past perfect continuous, you find here that had been is used and ing is added to the verb. In future continuous tense, you find that will have been or shall have been is used and ing is added to the verbs here.
Now in 5 minutes, I think I should sum up. The present perfect continuous tense is used for an action that which began at some time in the past and is still continuing. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं कुछ ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है, जैसे कि he has been studying for 5 hours. पास्ट कंटिन्यूअस का an action that began before a certain moment in the past and was continued up to that time. भूतकाल में एक निश्चित समय के पूर्व कार्य जो है प्रारंभ हुआ और उस समय तक जारी रखा, जैसे when Dr. Sharma left our college in 2010, he had been teaching here for 5 years. Or when the new principal arrived in 2013, the earlier one had been working here for 10 years. 2013 के पहले प्रारंभ हुआ काम और उस समय तक जारी रहा. And future perfect tense continuous tense is used for actions that will be in progress over a period of time leading up to a certain time in the future. ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में एक निश्चित समय से पहले प्रारंभ होकर उस समय तक जारी रहेंगे, जैसे कि by April 2015 I shall have been working in higher education department for 21 years. 2015 तक मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21 वर्ष से कार्य कर रही होंगी. भविष्य के एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भविष्य में एक निश्चित समय से पूर्व प्रारंभ होकर उस समय तक जारी रहे, इसमें आप देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ. हाँ, इसमें आप बच्चों अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसका आंसर दें. विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस? बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? हैज, हैव का, डू, डज का, विल, शैल का या फिर वॉज वर का? प्लीज बच्चों इन प्रश्नों में से इन प्रश्नों का जवाब आप देने का प्रयास करें. प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक. थैंक यू, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the present indefinite tense, s or is added to the verb if the subject is. present indefinite tense में आपने बच्चों पढ़ा कि हम वर्ब में s या is जोड़ते हैं किस परिस्थिति में? सब्जेक्ट जो है किस पर्सन को बिलोंग करना चाहिए? फर्स्ट पर्सन का होगा. हाँ जी, एनएनबी कॉलेज होशंगाबाद से मैम. हाँ जी बोलिए बेटा. सिंगुलर मैम. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड. थर्ड पर्सन सिंगुलर इज द करेक्ट आंसर. विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द पास्ट सिंपल टेंस? और कोई बच्चा प्रयास करे. पास्ट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? हेलो मैम, एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद से मैम. हाँ जी बोलिए. हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. आई थिंक किसी और बच्चे को भी जवाब देने दीजिए. बहुत अच्छा. The helping verb shall is used in future simple tense. The subject belongs to. shall का प्रयोग हम करते हैं अगर सब्जेक्ट बताइए फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या किसके साथ में करते हैं? इसका आंसर दीजिए. कौन बताएगा? shall का प्रयोग किस पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में होता है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ या फिर थर्ड के साथ? सेकंड पर्सन. हाँ, आईवी के साथ में होता है कि यू या फिर ही शी वगैरह के साथ में? किसके साथ होता है? आई शेल कहते हैं कि ही शेल कहते हैं? कोई भी मत जवाब दे. हेलो. हाँ जी, हाँ बोलिए. फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड. हाँ, फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का प्रयोग होता है. और ing added to the verb denotes so the sentence is. अगर किसी वर्ब के साथ में ing जुड़ी हुई है तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि जो टेंस है वो इंडेफिनिट है? कंटिन्यूअस. वेरी गुड, कंटिन्यूअस. ओके गुड. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट. बताइए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज होती है? पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में? पास्ट सिंपल टेंस. सभी क्वेश्चंस का जवाब ठीक है आप दे रहे हैं. ओके ठीक है, यहाँ कुछ रेफरेंसेस हैं. ओके, थैंक्स अ लॉट. आपने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. आप बच्चों घर में जाके इसको जरूर इसको घर जाके पढ़िएगा ताकि और अच्छे से आपको याद रहे. थैंक्स अ लॉट.